प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ पीस का करेंगे अनावरण। बिहार में नीतीश कुमार फिर से संभालेंगे राज्य की कमान। आज शाम होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी विधायकों ने तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता और रेणु देवी को चुना दल का उपनेता। देश में जारी है कोविड के खिलाफ जंग। 24 घंटे में 43,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर 93.27%। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुले। मंदिरों में कोविड से बचाव के सभी इंतजाम के साथ भीड़भाड़ रोकने के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला। और मर्सिडीज के ब्रिटिश फॉर्मूला 1 चालक लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां प्री खिताब अपने नाम कर इस सत्र का फॉर्मूला 1 खिताब जीता। हैमिल्टन का यह है 7वां फॉर्मूला 1 खिताब। नमस्कार और आइए अब सीधे चलते हैं हैदराबाद, जहां उपराष्ट्रपति हैदराबाद विश्वविद्यालय में एमिनिटीज बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर समारोह को संबोधित कर रहे हैं। శారీరకమైన శ్రమ, నడక, యోగ వ్యాయామం, దానితో పాటు మంచి భోజనపు అలవాట్లు. మంచి భోజనం అంటే మృష్టాన్న భోజనం తినమని నేను చెప్పడం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ సజెస్టింగ్ ఎ ఫీస్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. Please eat healthy food, proteinous food. That is very much necessary. The junk food, the stored food, the cold food should not be eaten at all. It is not suitable to our atmosphere and to our bodies. Our people, our forefathers, the ancient generation, they have lived and then practiced according to season and reason. వాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు అనేక సంవత్సరాల పాటు మన సంస్కృతిలో జీవించి అనుభవించి రంగరించి మేళవించి మనకి ఇచ్చినట్టు అనుభవం అవుతుందో దాన్ని మనం మర్చిపోరాదు. మన దేశానికి, మన వాతావరణానికి, మన శరీరానికి సరిపడే యొక్క భోజనం, ఆ కూరలు మనం అది శాకాహారం కావచ్చు, మాంసాహారం కావచ్చు, చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. వాటిని మనం సరిగ్గా కానీ పచనం చేసి ఉపయోగించుకోగలిగితే ఆరోగ్యంగా ఉంటామనే విషయం ఇప్పటికే రుజువైంది. నేను చెప్పాను కదా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందారని చెప్తున్న దేశాలు, సో కాల్డ్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్, సీ ద సిచ్యుయేషన్ దేర్ అండ్ సీ ద సిచ్యుయేషన్ హియర్, కంపేర్ ఇట్. ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కండిషన్స్, అవర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఆల్సో అవర్ ఫాలోయింగ్ ది అడ్వైస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. సో my dear friends, particularly younger generation, please avoid junk food and focus on proteinous food and follow the advice of the elders. The country has a vast experience. You have vast variety of food habits, foods, vast variety, different types. మనందరం ఋతువులను బట్టి, అకార్డింగ్ టు సీజన్ అండ్ రీజన్, మనం కానీ పద్ధతులు పాటిస్తే మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండేటికి అవకాశం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, brothers and sisters who are watching this program, the student community and others, I am very much pleased to inaugurate the new amenities center in the sprawling campus of the University of Hyderabad. It is indeed a matter of pride that the University of Hyderabad has become the youngest institution of eminence, along with a few IITs and an Indian Institute of Science, IISc, under the public funded institution category. I would like to congratulate
the student community, the academic community, and the administration, headed by the Vice Chancellor and guided by the Chancellor and others, for achieving this status of eminence. We are a country, as I told you, of a great civilization. Once upon a time, our institutions were known across the globe, and students from across the globe, they used to come to India, study here, Nalanda, Takshashila, Vikramshila, many. But over the years, because of the foreign rule, invasion, and forgetting our own culture, we lost that importance. Now again, thanks to the focus by the governments, we are again trying to revive that culture and get the recognition as an institution of eminence. You are best suited, center of the country, and Hyderabad is an important place. This university has got a great history, and we have got good academic teaching community. If you all work together, follow discipline, focus on education, the important aspect is the students and the faculty must focus on education, on improving the levels of standards. Other things can follow later. We have to really think in terms of why are we lagging behind. अभी आप देख रहे थे उपराष्ट्रपति हैदराबाद विश्वविद्यालय में नई एमिनिटीज़ के उद्घाटन के मौके पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां पे उन्होंने पौष्टिक खाना खाने की बात सभी से कही। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक अहम खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां मंडी में सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से ट्वीट करके कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और मंडी में हुए इस सड़क हादसे में बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता नंदिनी मित्तल से। नंदिनी, इस सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 7 मजदूरों की मौत हुई है, क्या पूरी खबर है इस हादसे के बारे में? आज सुबह जो है ये बताया जा रहा है कि एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये भी बहुत ही खेदजनक है कि ये जो मजदूर है ये मंडी से पहले उतरना था, यानी नेर चौक से उतरना था, लेकिन गलती से ये लोग मंडी जा पहुंचे और जब इनको वापस लाया जा रहा था वापस नेर चौक, जो लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है मंडी से, तो ये जो जीप है ये सुकेती खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 7 जो मजदूर थे उनकी मौत हो गई। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है और जो है सरकार राहत प्रदान करने के लिए संभव कदम उठा रही है। जी, कोई इस हादसे के कारणों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? क्या मौसम की वजह से या किसी और वजह से ये हादसा हुआ? हालांकि मौसम हिमाचल प्रदेश में कहा जाए तो इस सर्दियों की पहली बारिश महसूस की गई है। सुबह से मौसम खराब है, लेकिन अभी फिलहाल कारणों के बारे में स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। कारणों का पता लगाया जा रहा है और सरकार उसके बाद ही उचित कार्रवाई करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी हमें इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो मंडी में हुए सड़क हादसे में बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है और इस संबंध में पीएमओ द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें इस सड़क हादसे की खबर पर अत्यंत दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से ये ट्वीट किया गया है और सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है, ये कहा गया है। और इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की गई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। और खबरों में आगे रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। साल 1870 से साल 1954 के बीच श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने
एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। उन्होंने कविता, निबंध, भक्ति भजन और सत्वन के जरिए प्रेरक साहित्य लिखा और आज़ादी के आंदोलन और स्वदेशी के उद्देश्य को सक्रिय समर्थन दिया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है और इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आज स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। और आइए अब खबरों में आगे रुख करते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आज शाम फिर से यानी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कल पटना में हुई एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश को नेता चुना गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर एनडीए के घटक दलों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ राजनाथ सिंह, पार्टी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी शामिल हुए। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने नीतीश को गठबंधन का नेता चुने जाने का ऐलान किया। एनडीए बैठक में नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन गए और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा एवं पत्र पेश किया। राजभवन से निकलकर नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल महोदय ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत किया। उधर बीजेपी विधायकों की बैठक में कटिहार से नवनिर्वाचित विधायक तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया। बेतिया से चौथी बार विधायक रेणु देवी को भाजपा विधानमंडल दल के उपनेता के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा करेंगे। और फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इस दिवाली अपनों के लिए जगह बनाओ, खुशियों के लिए जगह बढ़ाओ। LIC Housing Finance wishes you a happy and safe Diwali. Stay safe. Move on. पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अब ले ही आओ ड्रीम कार का। अब आप चांस के लिए नहीं, चांस आपके लिए रुका है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन पे दे रहा है 0.25% कंसेशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, 0 foreclosure charges and higher amount of eligibility. So now own your dream car with Bank of Baroda today. कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 82,49,579 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.27% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 43,851 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग में कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 15 नवंबर तक कोरोना के कुल 12,56,98,525 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,61,706 सैंपल कल टेस्ट किए गए। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में अचानक मौसम ने करवट ली। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आसमान में धुंध छाई रही।
रविवार शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से आसमान भी काफी हद तक साफ हो गया। और आइए अब देखते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का क्या है हाल। और ये दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल है। EQI इंडेक्स दिल्ली में 288 यानी कि खराब श्रेणी में, गाजियाबाद में 278 ये भी खराब श्रेणी में है, और नोएडा में 301 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में, और गुरुग्राम में भी 304 और फरीदाबाद में ये है 247। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों को बधाई। आप देश में लोकतांत्रिक विमर्श को दिशा देते हो, नागरिकों को सूचित करके उन्हें सक्षम बनाते हो। इस महामारी के दौरान लोगों में जागरूकता लाने में मीडिया की भूमिका प्रशंसनीय रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ट्वीट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आज सबसे बड़ा संकट है फेक न्यूज। पत्रकारों को इसके लिए काम करना चाहिए। सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं। और बुलेटिन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इस दिवाली अपनों के लिए जगह बनाओ, खुशियों के लिए जगह बढ़ाओ। LIC हाउसिंग फाइनेंस विशेस यू अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। स्टे सेफ, मूव ऑन। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अब ले ही आओ ड्रीम कार का। अब आप चांस के लिए नहीं, चांस आपके लिए रुका है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन पे दे रहा है 0.25% कंसेशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, 0 foreclosure charges and higher amount of eligibility. So now own your dream car with Bank of Baroda today. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल फिर से खोल दिए गए हैं। सुबह सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर में कोविड से बचाव के सभी इंतजाम के साथ भीड़ भाड़ रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि दर्शनार्थियों को कोई परेशानी ना हो। सभी धार्मिक स्थलों पर मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले में प्रसिद्ध तुलजा भवानी माता के दर्शन के लिए तुलजापुर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था की है। कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 500 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल मंदिर में किसी भी तरह के धार्मिक विधि और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। और महाराष्ट्र में भारतीय सेना के जवान नायक सतई भूषण रामेश राव को श्रद्धांजलि दी गई। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान नायक सतई भूषण रामेश राव शहीद हुए थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 5,47,90,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 13,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 1,35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,13,55,000 के पार जा चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया है। ब्राजील में भी कोरोना के मामले 58,63,000 को पार कर गए हैं। वहीं यूरोपीय देश इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से कुल 19,81,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
स्पेन में करीब 14,92,000 से ज्यादा संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनको कोरोना से संबंधित किसी प्रकार का लक्षण नहीं है। जॉनसन ने कहा कि वो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कार्य करते रहेंगे। बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को डाउनिंग स्ट्रीट में सांसदों के एक समूह के साथ मुलाकात की थी, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ली एंडरसन शामिल थे, जो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। फिलीपींस में वामको तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने कहा है कि इस भीषण तूफान ने देश में भारी तबाही मचा रखी है। वहीं इस साल देश में आए चक्रवाती तूफानों के चलते 12 लोग लापता हैं। वामको तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश जारी है। कई जगह भूस्खलन हुए हैं और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य जारी हैं। उत्तरी फिलीपींस में बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। अल्काला शहर के आपदा अधिकारी जेसिंटो एडवाइंटो ने कहा कि लापता लोगों की तलाश जारी है। अल्काला शहर में कम से कम 12,000 लोगों को केंद्रों में शरण लिए हुए हैं, जबकि कुछ नागरिकों ने बाढ़ के दौरान घर छोड़ने से इंकार करते हुए घर की छत पर शरण ली हुई है। उधर राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण कर प्रशासन को मदद के लिए तत्पर रहने को कहा है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की सड़कों पर सप्ताहांत के दौरान आंशिक लॉकडाउन के दूसरे दिन यानी रविवार को सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ पुर्तगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते दोपहर 1 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच लोगों को घर में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सप्ताहांत के दौरान दोपहर 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक सभी दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बंद रखने को कहा गया। हालांकि बेकरी, दवा की दुकानें और किराने की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। देश की 308 में से 191 नगर पालिकाओं में लागू सप्ताहांत लॉकडाउन 23 नवंबर तक जारी रहेगा। हालात नहीं सुधरने पर लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा कार्य दिवस के दौरान रात के समय का कर्फ्यू भी लगाया गया है। पुर्तगाल में कोरोना वायरस के 2,17,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 3,300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, वहीं 76 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों समेत फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स रॉकेट रवाना हुआ। यह स्पेसएक्स की दूसरी मानव सहित उड़ान है। इसमें नासा से 3 और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा से 1 यात्री शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने कैप्सूल को रेजिलियंस नाम दिया है। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने का काम कर रही है। इससे नासा की रूसी सोयूज रॉकेट पर निर्भरता कम होगी, जो पिछले 9 सालों से नासा को यह सुविधा दे रहा था। मर्सिडीज के ब्रिटिश फॉर्मूला 1 चालक लुइस हैमिल्टन ने टर्की ग्रां प्री का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस सत्र का फॉर्मूला खिताब भी इसी के साथ उन्होंने जीत लिया है। हैमिल्टन का यह 7वां विश्व खिताब है। इसी के साथ उन्होंने जर्मनी के माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा बार विश्व चैंपियनशिप जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। हैमिल्टन की इस सीजन की यह 10वीं जीत है। पहले 6 लैप तक 6ठे स्थान पर रहने के बाद ब्रिटिश चालक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की। रेसिंग पॉइंट के सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर रहे। 35 साल के हैमिल्टन के करियर की यह 94वीं जीत है, जबकि शूमाकर ने अपने करियर में 91 जीत दर्ज की हैं। हैमिल्टन ने 13 साल पहले अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस जीती थी और वो अब शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी पर आ गए हैं। हैमिल्टन के नाम सर्वाधिक रेस जीत, पोल पोजीशन और पोडियम फिनिश का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड की नेशंस लीग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद समाप्त हो गई है। रविवार रात ग्रुप 1 में विश्व की नंबर 1 टीम बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराने में सफलता पाई। बेल्जियम के लिए यूरी ने 10वें और मार्टिन्स ने 23वें मिनट में गोल दागे। ये प्रतियोगिता में इंग्लैंड की लगातार दूसरी हार है। इसी के साथ वो ग्रुप में बेल्जियम और डेनमार्क के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गई है। 2018 के बाद ये पहला मौका है जब इंग्लैंड को लगातार 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं ग्रुप में शीर्ष पर मौजूद बेल्जियम की घरेलू मैदान पर लगातार 11वीं जीत है। और अब आपको ले चलते हैं एक प्रेरणा से भरपूर खबर की तरफ, जहां एक नन्हा बालक लद्दाख के
चुशुल गांव के पास स्थित एक आईटीबीपी कैंप में जवानों के साथ सैल्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। आईटीबीपी ने इस वीडियो को जारी किया है और कहा है कि नवांग को स्थानीय बटालियन ने सम्मानित किया है। सावधान, हाँ तेज चल, हाँ थम, विश्राम, हाँ सावधान, सैल्यूट। और इस खबर के बाद अब बात करते हैं सेहत की। मोबाइल फ़ोन कहीं भी रख देना कई लोगों की आदत होती है। ऐसा करते समय हम ध्यान नहीं देते कि जिस जगह पर हम सेल फोन रख रहे हैं वो जगह साफ है या नहीं है। मोबाइल फ़ोन को यहाँ वहाँ रख देने से कितनी गंभीर समस्या को हम निमंत्रण दे सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोबाइल फोन्स का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सेल फोन कई संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है? कई बार हम अस्पताल मोबाइल फ़ोन का लैब जाते हैं वहाँ रख देते हैं, किचन जाते हैं वहाँ रख देते हैं, टॉयलेट जाते हैं वहाँ रख देते हैं, अस्पताल जाते हैं वहाँ रख देते हैं, कूड़ेदान के आसपास भी रख देते हैं और सब जगह रखते हैं और सब लोग रखते हैं। उनमें कुछ व्यक्ति या कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कि थोड़े जो माइक्रोब्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो इतने स्वास्थ्य के लिए उचित ना हों और ऐसे कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेल फोन को हर जगह अपने साथ ले जाने से सेल फोन पर कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं और जब हाथों से उसे छुआ जाता है तो वही कीटाणु हाथों में आ जाते हैं और फिर शरीर में प्रवेश करके बीमारी का कारण बनते हैं। फर्ज कर लीजिए आपने 2-3 घंटे आप ट्रैवल करा और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करा, जब आप वापस आएंगे वो कीटाणु उस पे हाथ पे लगे रहेंगे, वो फिर आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, चाहे खाने पीने में मुंह के जरिए या श्वास के जरिए या त्वचा के जरिए। जैसा कि हम अपने कपड़ों को रोज़ साफ़ करते हैं, बदलते हैं, धोते हैं, उसी तरह से मोबाइल फ़ोन को भी साफ़ रखना उतना ही आवश्यक है। इसको आप टिश्यू पेपर से या रुमाल से या तौलिए से कर सकते हैं साफ़, उसमें थोड़ा सोप वो जो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर से एंटीसेप्टिक लोशन की इस्तेमाल नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल जो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आए हैं वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन का कवर दोनों साफ, सुंदर और स्वच्छ रहें। सेल फोन को बाथरूम में न ले जाएं, खाना खाते समय सेल फोन को अपने पास न रखें, साथ ही सेल फोन को साफ करने का विशेष ध्यान रखें जिससे संक्रमण से बचाव किया जा सके। अपने मोबाइल फोन को समय समय पर ठीक से साफ करें, उसे यहाँ वहाँ न रखें और ध्यान रखिए कि आपके साथ हर समय रहने वाला आपका मोबाइल फोन कहीं आपके लिए संक्रमण का जरिया न बन जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। तो अपने मोबाइल फ़ोन को ज़रूर साफ़ रखें और साथ ही कोरोना के इस समय में अपने हाथ भी लगातार धोते रहें, चाहे सैनिटाइज़र से उनको साफ़ करें या साबुन से धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और हम लगातार डीडी न्यूज़ पर अपनी मुहिम मास्क अप इंडिया के ज़रिए बार बार सबसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि मास्क लगाकर बाहर जाएं। जब भी बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और मास्क को सही तरीके से पहनें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।